गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है प्रोजेक्टाइल मोशन के अगले पार्ट में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूले और कुछ न्यूमेरिकल्स। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, इन वाई डायरेक्शन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन विद सम स्पीड u, then its initial component of velocity horizontal या x component is u cos theta, and throughout the motion it will remain u cos theta only. Vertical direction की velocity will keep on changing. Vertical direction की velocity पहले ज्यादा होगी, फिर थोड़ी कम होगी, highest point पे जाके vertical direction की velocity जीरो भी हो जाएगी, लेकिन horizontal component will remain constant u cos theta. तो इस पे न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से बन सकता है कि let's say a boy throws a ball with a speed of 20 meter per second at an angle of 30 degree. A boy throws a ball with a speed of 20 meter per second at an angle of 30 degree. The question is, with what speed the boy must run to catch the ball? With what constant speed the boy must run to catch the ball? Now, as we know that x direction में velocity will not change, and as x direction में velocity will not change, so x direction की velocity will be 20 cos 30, और बॉय को भी उसी स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर इससे ज्यादा स्पीड से बॉय भागेगा तो बॉय पहले पहुंच जाएगा, बॉल बाद में आएगी। अगर इससे कम स्पीड से बॉय भागेगा तो बॉल पहले पहुंच जाएगी, बॉय बाद में आएगा। सो द आंसर इज बॉय मस्ट रन विद स्पीड 20 cos 30 which is equal to the horizontal velocity of the ball, that is equal to 10 root 3 meter per second. Now, at highest point, as we are discussing the important points, the second important point is at highest point, y component of velocity is zero, but net velocity is not zero. Net velocity is u cos theta। अभी भी आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे अगर नेट वेलोसिटी जीरो होती तो पार्टिकल ऐसे नीचे टपक जाता, नीचे गिर जाता। नेट वेलोसिटी जीरो तब होती है व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। सो इन दिस केस नेट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। प्लीज रिमेंबर हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन या y कंपोनेंट जरूर जीरो होगा वेलोसिटी का, लेकिन x कंपोनेंट विल बी देयर एंड व्हिच इज कांस्टेंट u cos theta। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन इट। द velocity of a projectile at highest point is half of its velocity of projection. Find angle of projection. Find angle of projection. We know that velocity at highest point is u cos theta, and velocity at highest point is given as half of its initial velocity of projection. That means velocity at highest point is half of initial velocity of projection, which is u. U and u get cancelled. We get cos theta equal to 1 by 2. So theta becomes 60 degree. This is the answer. A very basic question, but this question can be asked in NEET or even in JEE Mains. So please make sure कि आपको ये बात पता हो, highest point पे velocity initial velocity का cos theta times होता है। Next example, the kinetic energy at highest point. The kinetic energy at highest point is half of initial kinetic energy. The kinetic energy at highest point is half of initial kinetic energy. Again, find angle of projection. Now, how to find angle of projection in this case? देखिए बेटा, अगर initially let's say speed is u, then at highest point speed is u cos theta. So initial ki is initial kinetic energy. If initial kinetic energy we will write half mu square. While kh highest point पे kinetic energy we will write half m u cos theta square. तो जैसे हम अभी बोल रहे थे कि speed at highest point is cos theta times of initial speed. Similarly, kinetic energy at highest point kh is initial kinetic energy ki into cos स्क्वायर थीटा टाइम्स। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इनिशियल स्पीड की cos थीटा टाइम्स होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। सो नाउ गिवन इज kinetic energy at highest point is half of initial kinetic energy. That means ki cos square theta, which is kinetic energy at highest point, is half of
initial kinetic energy. So we will get from here ki से ki गया, cos theta is 1 by root 2, theta equal to 45 डिग्री. आई होप ये बात आपके समझ में आई हो. दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी. आप एक बार इसको फिर समझिए, और अगर इफ यू डू नॉट वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला देन यू कैन यूज द बेसिक आल्सो. आप इनको डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशंस को. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड देम एंड पुट द रिलेशन व्हिच इज गिवन इनटू दिस. नाउ नेक्स्ट. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो बहुत बार पूछे गए हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइस यू टू रिमेंबर देम डायरेक्टली. आप उनको एज अ शॉर्ट ट्रिक याद रखिए. फर्स्ट इज condition for maximum range. Condition for maximum range keeping initial speed same. That means theta can change. Let's say a boy can throw a ball with some speed, some maximum speed. Let's say that maximum speed is 40 meter per second, 50 meter per second or whatever. A boy can throw a ball with 50 meter per second. Let's say. अब वो 50 मीटर पर सेकंड से अगर बॉल को फेंक सकता है तो क्या किसी भी डायरेक्शन में फेंकने पर ही और शी विल गेट द सेम रेंज. मान लीजिए बॉय ने किसी स्पीड से यहाँ पे फेंका इस एंगल पे, क्या वो इस डायरेक्शन में फेंके तो डू यू थिंक दैट द रेंज विल बी सेम? क्या इस डायरेक्शन में फेंके तो डू यू थिंक द रेंज विल बी सेम? इन ऑल दीज केसेस ध्यान रखिएगा, इन ऑल दीज केसेस इनिशियल एंगल इज डिफरेंट बट स्पीड इज सेम. स्पीड यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे हर जगह यू है. सो द आंसर इज नो, द रेंज विल नॉट बी सेम. व्हाई? बिकॉज रेंज, द पर्पस इज, एक बॉय एक बॉल को सबसे ज्यादा दूर फेंकना चाहता है. पर्पस ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना है, लेकिन उसकी इनिशियल स्पीड तो सेम है, उसमें जितनी ताकत है उसके हिसाब से उसने अपनी इनिशियल स्पीड जो भी हो सकती है वो यूज कर रहा है. सो वो एंगल चेंज करके ये देख सकता है कि किस एंगल पर फेंकने पर मैक्सिमम रेंज मुझे मिलेगी. एंड एज वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. u इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, बचा कौन जिसको चेंज किया जा सकता है? केवल थीटा. सो अलग अलग थीटा पे अलग अलग रेंज आएगी, और यहाँ से हमें साफ समझ में आ रहा है कि फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम रेंज ओनली sin 2 थीटा ही बचा है, sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम. किसी भी साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 1. वो भी कब? जब उसका एंगल 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन हो. व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन. सो फॉर मैक्सिमम रेंज 2 theta is pi by 2 radian. That means theta is pi by 4 radian. Or in degree we can write theta is 45 degrees. So range will be maximum. अगर इनिशियल स्पीड सेम रखी जाती है तो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी 45 डिग्री एंगल पर. नाउ ये तो ठीक है सर, मैक्सिमम रेंज मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम रेंज है कितनी? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बाय द वे. एंड मैक्सिमम रेंज आएगी कितनी? मैक्सिमम रेंज विल बी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. से देखें अगर तो sin 2 थीटा बिकम्स 1 u स्क्वायर बाय g. Maximum range is u square by g. Maximum range is u square by g. Got it? So range maximum कब होगी? जब एंगल 45 डिग्री होगा. और रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? u square by g will be maximum range. रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? u square by g will be maximum range. आगे चलते हैं अब इसी में. So the question, अब there are two boys. One boy is throwing a ball at 30 degree. Another boy is throwing the ball at 45 degree. किसकी रेंज ज्यादा होगी? तो प्लीज डू नॉट राइट राइट अवे कि सर 45 डिग्री वाले की ज्यादा होगी. दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द स्पीड इज सेम. तो अगर आपसे ऐसा बोला जाए टू बॉयज आर थ्रोइंग द बॉल्स विद सेम इनिशियल स्पीड, देन रेंज किसकी मैक्सिमम होगी? व्हेन एंगल इज 45 डिग्री. अगर एंगल 30 डिग्री वाले की स्पीड काफी ज्यादा है 45 डिग्री वाले के कंपैरिजन में, तो 30 डिग्री वाले की ज्यादा रेंज होगी. दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट ऑफ कोर्स. सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाय g. नाउ सेकंड इज कंडीशन फॉर सेम रेंज. यहाँ पे भी सेम रेंज में भी ध्यान रखिएगा. कंडीशन फॉर सेम रेंज फॉर गिवन इनिशियल स्पीड. कंडीशन फॉर सेम रेंज और गिवन इनिशियल स्पीड. लेट्स से आप यहाँ पर भी देखिए, मान लीजिए ये 45 डिग्री वाला थ्रो है, तो 45 डिग्री वाले थ्रो पे मैक्सिमम रेंज आएगी. लेकिन अगर आप एंगल 45 डिग्री से कम करेंगे या 45 डिग्री से ज्यादा करेंगे, इन बोथ दीस केसेस द रेंज कैन बी इक्वल. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? रेंजेस कैन बी इक्वल व्हेन द एंगल इज नॉट 45 डिग्री. वन एंगल इज 45 डिग्री से ज्यादा और दूसरा एंगल 45 डिग्री से कम हो. तो सो इन दिस केस फॉर सेम रेंज, लेट्स से this is one and this is other throw. Both have got the same range for the same initial speed. Now as मैं आपको पहले आंसर बता ही देता हूँ. The answer is range will be same if one angle is theta and the other angle is 90 minus theta. Range is equal, of course initial speeds must be equal. Range equal तब होगी जब एक एंगल थीटा होगा और दूसरा एंगल 90 minus theta होगा. For example, if one angle is 30 degree
another angle is 60 degree. If one angle is 20 degree, another angle is 70 degree. If one angle is 25 degree, another angle is 65 degree. In such cases जहां पर दोनों angles का sum 90 degree हो, theta 1 plus theta 2 is 90 degree. In such cases ranges are same, provided same initial speed. So एक बात, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि sin 2 थीटा इससे मैं sin 2 ऑफ, अगर आप थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा sin 180 minus 2 theta. Sin 180 minus 2 theta is also sin 2 theta. So please remember, आज हमने क्या पढ़ा? मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन इनिशियल स्पीड। रेंज मैक्सिमम तब होगी व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, और रेंज इक्वल तब होगी तो गिवन प्रोजेक्टाइल्स के लिए फॉर सेम इनिशियल स्पीड जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।